ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲਾ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਏ, DPO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12-11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਹੀਰ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਵਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਾ ਗਏ, ਜਮੀਲ ਤੇ ਯਾਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਨ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਸੇ ਨੇ? ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਨਸੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ 6 ਇਹ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ। 2 ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ 2 ਜਮੀਲ ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆਰੂਨ ਫੈਸਲ ਤੇ ਮੁਜਤਬਾ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਤਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਨ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਰ। ਆਰੂਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ? ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਮੀਲ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਛੱਤ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਨਾਉ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਸ ਗਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ? ਬਸ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ, ਜਮੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਨੇ? ਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜ਼ਹੀਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਬਹਿ ਚਲੇ? ਜਹਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਹੀਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 16 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਛੁੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਮੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਸਾਂ, ਇੰਜ ਕਰਸਾਂ ਉਂਝ ਕਰਸਾਂ। ਜਮੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 3 बेटे ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। बहरहाल जी, ये सारा मामला आप देख सकते हैं नाजरीन, जिस तरह इस भाई ने बता दिया कि अपनों ने ही अपनों की जान ले ली। इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अगर तल्ख कलामी होगी थी वैसे बात की जा सकती थी, समझाया जा सकता था, वैसे डराया धमकाया जा सकता था। घर में आके और सबको मार देना, यानी कि वालिदा इस शख्स की जो है वो अब दुनिया से चली गई हैं, कत्ल कर दिए गए उन्हें, बहन थी, बहनोई, भाई, और इस शख्स ने फिर डेफिनेटली ये छत पे मौजूद था और जब इसके पीछे गए तो उसने जान बचाई अपनी वहाँ से भाग कर, और ये अगर वहाँ से ना भागता तो शायद इसकी भी जो है वो जान चली जाती। इससे पहले कभी कोई दुश्मनी नहीं थी आप लोगों को? कभी कोई लड़ाई झगड़ा वैसे ख़ानदान में आना जाना सलाम दुआ थी? मेरे वालिद साहब का ये पंचारा था, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, उनका पंचारा था ये, उनका दोस्त था ये जमील। वालिद साहब का दोस्त था जी, मतलब वालिद साहब बहुत प्यार करते थे उससे, बड़ा ख्याल रखते थे। अब देख लेना नाज़रीन, इसलिए हम यही कहें कि गुस्सा, ज़िद, अना इंसान को जो है कहीं का नहीं छोड़ती। अगर ये भाई बता रहे हैं जी कि जो मेन अक्यूज़ड है अब वो इनके वालिद के बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे थे, बड़ा प्यार था, और गुस्से ने, अना ने उस प्यार को ख़त्म करके इतनी बड़ी जुल्म की, दर्द की दास्तान जो है वो रकम कर दी कि घर में घुसकर ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना बात की, आती स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी और 4 लोगों की जानें एक घर में गई, कत्ल कर दिया गया उन्हें। और फिर जब ये लोग बाहर जा रहे थे तो उस वक्त जेहलम पुलिस ने, DPO जेहलम तारिक अजीज संधू के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की और मुलजमान को पकड़ लिया। उन तो सारे जिन्हें भी मुलजमान ने सारे फड़ गए थे नामजद? जी, 7 ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਨਾਮਲੂਮ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक कार्रवाई, कानून के मुताबिक कार्रवाई होवे, कानून साडे नाल अच्छा तावन करे। और हम भी यही गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और मेरिट पर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई हो। और बार बार यही गुजारिश है, खुदा रा गुस्से, ज़िद और अना से बचें।
ये पूरे के पूरे ख़ानदान बर्बाद कर देती हैं। इस दुआ के साथ कि इस तरह के वाक़यात और मामलात किसी दुश्मन के साथ भी ना हों। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जेहलम में हमारे नुमाइंदा राजा वकार, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। जिस वक्त ये ख़बर हमारे तक पहुंची तो कहते हैं ना कि जंगल में आग की तरह ये फैल गई। एक ही घर के अंदर 4 अफराद का कत्ल और शब बरात की रात को, अबादत की रात को ये कत्ल हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे दाद देना चाहूँगा कि जेहलम पुलिस ने, जिसने 24 घंटे के अंदर ऐसे मर्डर के 7 एक्यूज़ को फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया। नॉर्मली कैसे भाई ये होता है कि अब्रॉड से, बाहर से लोग जो आते हैं वो मर्डर करते हैं और दूसरे मुल्क चले जाते हैं, लेकिन DPO जेहलम ने ये एक बरवक्त कार्रवाई की। उनको रोक लिया ना, पकड़ लिया। मर्डर होने वाले दिन ही ये लोग कोई इंग्लैंड भाग रहा था, कोई फ्रांस भाग रहा था। ये एक हिकमत अमली थी जिसकी वजह से ये फौरी तौर पे गिरफ्तार हुए। अच्छा, इनका रिश्ता क्या था आपस में? देखिए, ये जो मर्डर करने वाले हैं उनमें 2 आपस में भाई भी थे और अपने एक ही रिश्तेदारी थी, एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे। और इनकी जो आपस में लड़ाई है वो कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये लड़ाई छोटी तल्ख कलामी के ऊपर गुस्से की हालत में वो बढ़ती गई और बात 4 मर्डर तक आ गई है। एक ही रात में 4 लोगों को घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यानी कि मुद्दई की वालदा, उसकी बहन, उसका भाई और उसका बहनोई। बहन और बहनोई घर आए थे मिलने के लिए क्योंकि शब कदर की रात थी और सारे फैमिली वाले इकट्ठे थे और दुआएं मांग रहे थे, खैर औफियत के लिए। सारे मामलात जो है खुशी खुशी हो रहे थे कि अचानक घर पर हमला कर दिया गया और घर में घुसकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया था, लेकिन DPO जेहलम तारिक अजीज संधू के अहकामात पर जेहलम पुलिस, स्पेशली मंगला पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और कातलों को जो है गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं SHO थाना मंगला एहसान साहब से, उस सारे मामले के बारे में जानते हैं कि क्या मामला था, क्यों इस हद तक बात चली गई कि 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया। जी एहसान साहब, बताइए सारे वकूअ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, एहसान अब्बास, SHO थाना मंगला, डिस्ट्रिक्ट जेहलम जी। मुरखा 13 फरवरी 2025 को 15 कॉल हमें मौसूल होती है। करीबन 8 बजे रात का वक्त था कि दिलावर नामी शख्स 15 पे कॉल करता है कि उनके घर पर उनके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने हमला किया है, जिसमें उसके घर के 4 अफराद कत्ल हो गए। जिस पर हमरा मकामी पुलिस मौके पर पहुंचो तो उस घर में उस वक्त उसकी वालदा सकीना बीबी, बहन उसकी अदीला, बहनोई इब्रार और भाई मुतरशद, वो जो है उस वक्त कत्ल हो चुके थे। उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। दिलावर ने हमें जो इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट में बयान दिया उसमें उसने 7 मुलजमान जो हैं, जिनमें जमील, ज़हीर, फैसल, मुजतबा, मुर्तज़ा, हारून और यासर को नामज़द किया। उसके साथ 3 नामालूम मुलज़म हैं कि इन अफराद ने असलाह शीं से जो है वो घर पर और बाहर गली में फायरिंग की है, और बाद में घर में दाखिल हुए हैं। घर में दाखिल होकर फायरिंग की है, जिसमें उसके 4 जो हैं वो अजीज़ कत्ल हो गए। अच्छा, क्राइम सीन का बताएंगे, जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर कितने लोग थे, जिनकी उस वक्त क्या हालत थी? क्या वो कुछ ज़ख्मी हालत में थे या उनकी वो उस वक्त हलाकत हो चुकी हुई? उस वक्त मौके पर जो है वो दरवाज़े के अंदर बाहर इब्रार और मुतरशद की डेड बॉडीज़ पड़ी थी। अंदर बरामदे में अदीला और सकीना की जो है वो भी वो डेड बॉडीज़ पड़ी थी। उनमें कोई भी अलाइव हालत में नहीं था, वो एक्सपायर हो चुके थे। तो फायरिंग कितने फायर किए इन लोगों ने? या जो कहते हैं ना कि मतलब एक तो होता है ना गोलियों को बिछाड़ कर देना। जी बिल्कुल, अंधाधुंध फायरिंग की है इन्होंने, कोई उसमें अकाउंट में नहीं है कि क्या इनके फायर किए हैं। काफ़ी ज़्यादा मौके से जो है वो खाली खोल इनके मिले हैं जो PFS लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं फर्दर वेपनों के साथ मैचिंग करवाने के लिए। अच्छा, तो ये पता चला है कि जब ये हमला करना तो उससे पहले इलाके में घूम रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा असला लेके? उसकी जो बाहर गली है उसमें इनके शवाहिद मिले हैं, क्योंकि दीवारों पर फायर वगैरह लगे हुए हैं। जिस गली से आए हैं उधर से ये फायर करते हैं। तो ये इरादतन ही कत्ल करने लिए ज़ाहिर आए थे या कि मसलन डराने धमकाने आए तो बाद में तखलामी होगी ज़्यादा तो उसने गोलियां मार? जिस तरह वो गली में फायर लगे हुए हैं दीवारों पर, ये घर की दीवारों पर लगे हैं, उससे कतन इस तरह नहीं चलता कि डराने के लिए इन्होंने फायर किया। ये इंटेंशनली मर्डर के लिए आए और इन्होंने कत्ल ही किया, पूरा खानदान खत्म करने के लिए। तो मुद्दई बच गया? मुद्दई उस वक्त छत पे था, वो इस वक्त जैसे उसकी ज़िंदगी बची हुई थी, इत्तेफाक से वो बच गया है। इरादतन तो इसी तरह लग रहा है कि मौके पर तो वो सबको मारने के लिए आए। तो जो कातिल है उसका क्या रिश्ता था, मसलन जो मकतूला जो माँ इनकी? और कातिल जो जमील और
उसका भाई ज़हीर है, वो इसके अम्मी के कज़न यानी खाला के बेटे खाला के बेटे, इस तरह का रिश्ता बनता है उनका आपस में। अच्छा करीबी रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशन है उनका। ब्लड रिलेशन था, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, सजा का एविडेंस स्ट्रांग है, वेपन उनसे रिकवर हो गए हैं, वो PFA से लेबॉर्ट्री जमा कराए जा चुके हैं। बाकी भी मौके पर जो वेपन कौन सा यूज़ किया उन्होंने? वेपन जमील के पास क्लाशनकोव थी, ज़हीर के पास राइफल 222 बोर थी, बाकी 5 मुलजमान के पास पिस्टल 30 बोर था। तो ज़्यादा जो मेन जिन्होंने फायरिंग की है वो कितने लोग थे? फायरिंग तो सब ने की है, लेकिन जमील और ज़हीर मेन मुलजम है इसमें। मेन जिन्होंने मारा है डायरेक्ट। डर जी, ये जैसा कि SHO मंगला एहसान साहब इन्होंने बता दिया जी कि क्या मामला था सारा। खूनी रिश्ता था, लेकिन गुस्से में आकर, ज़िद में, अना में आकर खूनी रिश्ते को भुलाकर इन लोगों ने 4 लोगों को शब कदर की रात को ही कत्ल कर दिया।